मैम करना नहीं था मैम, गलती से हो गया रे। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। एक्सक्यूज मैम। यस मैम आप जो हमने राइटिंग वाला काम करना है मैम, वो आप गूगल क्लासरूम में yes, ओके मैम। so we are going to start with chapter number 1, integers. You have done integers last year as well, right? So we are just going to revise what we used to have. So a long time ago, man used his fingers or markings on bones for counting, and later devised various symbols or figures for each number. While in those times, man normally counted the animals he killed and ate. Several thousand years later, man is still counting, although mostly money. so what we have when you count something, तो counting के लिए हम क्या use करते A हैं? long time ago, man used हम counting के लिए क्या use करते हैं? 1 2 3 so on, and those counting numbers are actually called natural numbers, right? Then we have whole numbers. Well, you may be rich one day, but there are days when you are flat broke with no money left. So when it comes to describing the notion of nothing, a number 0 was discovered. And counting numbers के साथ जब आप 0 combine करते हो, आपकी नई list बन जाती है, right? And that new list is called whole numbers. Counting आपकी 1 से start होती है, लेकिन counting करते हुए we need a 0 also because we want to show nothing. Nothing को show करने के लिए हमारे पास है 0, और counting के साथ जब हम 0 लगा देते हैं तो हमारी जो new list बनती है उस list को हम क्या बोलते हैं? whole numbers. Whole numbers is the collection of natural numbers and 0. Then we have negative numbers. For example, when you have to measure the depth of a ship below sea level, when the temperature drops to sub-zero under very chilly conditions, and of course, when you owe money to the bank. So when we use a minus sign, जब हम number के आगे एक minus sign लगा देंगे, हमारी जो counting है उसके आगे आप minus लगा दो तो आपके numbers क्या बन जाएंगे? Negative numbers. जितनी भी counting है, since counting is endless, same way negative numbers की जो list होगी वो भी endless होगी, right? And I have written examples here, -1, -2, -3, so on. आपकी counting 1 2 3 so on है, तो आप हर number की पहले minus लगा दो तो वो negative number बन जाएगा. And after this we have integers. Integers में आपके पास क्या आएगा? It will be the collection of negative numbers and whole numbers. And if you just observe, आपके पास यहाँ पे this list ये आपके हैं natural numbers. This is your counting numbers. These are natural numbers. और इसके बाद जब आपने 0 ले लिया तो 0 and natural ये मिलके क्या बन जाएंगे? whole numbers. And after that whole numbers के बाद अगर हम यहाँ से ये वाले numbers लेते हैं, इधर हमारे पास कौन से numbers आ गए? Negative numbers. Are negative numbers. And negative numbers और अगर हम whole numbers को साथ ले लें इन सभी को, तो वो कौन से बन जाएंगे आपके पास? Integers. Counting is natural. Counting के साथ 0 is whole. Whole के साथ negative will be integers. Anyone who would like to ask anything? No, ma'am.
All right. Just a minute, somebody has left a message. Okay. So when we talk about integers में हमारे पास number line हम draw करते हैं, and as you can see here, आपका 0 बीच में होगा, towards the right side you have positive integers, जो आपकी simple counting होती है, left side पे आपके पास negative integers हैं, and as we go away from 0, आपके numbers तो बढ़ रहे हैं, like 1, 2, 3, लेकिन लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ माइनस लगा हुआ है, और राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, और कोई साइन नहीं लगा हुआ दैट मींस दे आर पॉजिटिव. फॉर पॉजिटिव यू कुड आल्सो यूज प्लस साइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव नंबर्स के साथ माइनस लगा होना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स के साथ प्लस लगा सकते हो आप, दैट्स ऑप्शनल. और अगर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ दैट आल्सो मींस कि आपका जो नंबर है वो कैसा है, पॉजिटिव है. एंड if you just look at this number line, what we have is, जैसे जैसे हम अपनी right side की तरफ जाएंगे number line के ऊपर, as we move towards the right side, इधर जाते हुए values increases, जो value होगी वो increase होगी. आपको counting से पता चल जाएगा, counting से check कर सकते हो. 0 के बाद आज हम 1 पे पहुंचे, value बढ़ गई, 1 से आगे गए 2 पे, फिर value बढ़ गई, 2 से आगे गए 3 पे, तभी value बढ़ गई. तो आप कहीं से भी begin करो, you can start from anywhere on the number line. अगर हम यहाँ से भी begin करते हैं, अगर हम right side जा रहे हैं तो value क्या होगी, bigger होती जाएगी. And opposite is, अगर हम left की तरफ जा रहे हैं, if we are going towards the left, तब क्या होगा, value decrease होगी. And because of this, अगर हम left की तरफ जाएं तो value कम होती है, right की तरफ जाएं तो value increase होती है. अगर आप इस number line के ऊपर कोई भी दो values उठा लो on this number line, you can go further also, आपके पास और numbers आ जाएंगे, आप left की तरफ जा सकते हो, आपके पास और numbers आ जाएंगे. इधर आपके पास number होगा जो smallest होगा, smallest number इस तरफ होगा और biggest number इस तरफ होगा. And if I just pick two numbers here, टेम्परेचर में टेम्परेचर के जैसे भी कर सकते हैं ना, कि अगर जैसे ज्यादा ठंड है तो माइनस में और सर्दी है तो प्लस. That's right. जैसे जैसे आप ठंड बढ़ती है मींस टेम्परेचर फॉल कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होगा तो वो माइनस की तरफ चला जाएगा, और जब गर्मी होती है टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है. यस भव्या. मैम यस. -2 टेम्परेचर है, 0 बड़ा है कि -2 टेम्परेचर ज्यादा है? 0 इज बिगर. 0 पे बर्फ नहीं होगी, -2 पे बर्फ होगी. ये आप लेटर ऑन साइंस में अंडरस्टैंड करोगे कि 0 पे बर्फ क्यों नहीं होती और -2 पे क्यों होती है. वन बाय वन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस बेटा. मैम वो क्योंकि 0 उसमें आता है पॉजिटिव में मैम, क्योंकि 0 का आगे -0 लगता है. नो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. 0 के आगे कोई साइन नहीं लगता, 0 के आगे कुछ भी नहीं लगाते हम, और ये ना माइनस की कैटेगरी में है ना ये प्लस की कैटेगरी में है. Two participants had raised their hand. Kanika, you want to ask anything? All right. So other than this, I would like to just use this कि हम नंबर लाइन पे जब इन टीचर्स शो करते हैं, मेरी राइट साइड पे बड़े नंबर्स हैं, लेफ्ट साइड पे छोटे नंबर्स हैं. आई एम गोइंग टू जस्ट कंपेयर. अगर सपोज मैंने 1 और 2 को कंपेयर करना है, लेट्स जस्ट क्लियर दिस. आई वांट टू कंपेयर 1 एंड 2. तो आपने नंबर लाइन पे देखना है, नंबर लाइन पे जो वैल्यू राइट पे होगी वो बड़ी होगी. So 1 और 2 में से 2 बड़ा है. This is very simple. Now let's just look at these two. If we compare 3, -3 and -2. If I want to compare -3 and -2, same rule will apply here. The number which is on the right, तो ये right पे है और -3 left पे है, तो बड़ा कौन सा होगा, -2. ठीक है. 2. और if you just compare
अगर आप 0 को कंपेयर करते हो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ तो कौन से बड़े होंगे? 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को कंपेयर करो, दोनों में से कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव अब 0 को नेगेटिव इंटीजर्स, कंपेयर 0 विद नेगेटिव इंटीजर्स, 0 बड़ा होगा। 0 बड़ा होगा. Okay. And if you just look at the positive integers यहाँ से start हो रहे हैं, right? 1 से. तो सबसे छोटा positive integer कौन सा है? 1 This is the smallest out of positive. This is the smallest positive integer. और अगर आप चेक करते हो इधर नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ से जा रहे हैं पीछे की तरफ, और इधर जो है डिक्रीज होंगे. जब हम इधर जाएंगे तो वैल्यूज छोटी हो जाएगी. तो व्हाट कैन यू से अबाउट इसमें 1 सबसे ग्रेटेस्ट होएगा मैम, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट होएगा. यस, -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. -1 मैम एक चीज समझिए मैम, उसमें तो हमने मतलब राइट जो 1 है वो लेफ्ट साइड प्रैक्टिस हमने किया, पर इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि नेगेटिव में कोई सबसे छोटा है ही नहीं मैम, क्योंकि जब जब आगे जाते जाएंगे. अच्छा लिसन, हम छोटे नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं. सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है जो सबसे पहला आता है. 0 से जैसे ही हम पीछे जाते हैं -1 मिलता है, तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है. इसके बाद जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे हमारे सारे नेगेटिव इंटीजर्स रिड्यूस होंगे, दे विल ऑल बी स्मॉलर. So this is what I have written. Positives में हम smallest बता सकते हैं, we cannot tell के biggest कौन सा है. In positive integers, we can write down that the smallest positive integer is 1. Now this is important. We're talking about smallest positive integer. The smallest positive integer आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं पूछूं biggest positive integer कौन सा है, वो आप नहीं बता सकते. और अगर मैं जाऊं नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ, तो नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ आई कैन टेल विच इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. लेकिन अगर मुझे बताना है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो मैं वो नहीं बता सकती. इधर मैं यहाँ पर होगा स्मॉलेस्ट. सॉरी लवप्रीत, क्या पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैम, जैसे हमने ये लाइन बनाई मैम, फिर -4 यहाँ पर एंड है, तो मैम फिर -4 होगा ना यहाँ पर स्मॉलेस्ट. नहीं बेटा, नंबर लाइन का एंड नहीं होता, हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. मैं और नंबर्स बना सकती हूँ, जितना मर्जी चाहूँ इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ. ओके मैम, दैट्स राइट. जैसे काउंटिंग है, 4 के आगे आपको पता 5 मिल जाएगा. आप बोलो यहाँ पे 4 बिगेस्ट है, मैं बोलूंगी 4 के बाद 5 आता है, 5 भी नहीं बिगेस्ट के बाद 6 आता है. सो जस्ट लाइक राइट साइड पे आपकी काउंटिंग जाती जा रही है आगे, वैसे ही लेफ्ट पे भी हम पीछे 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 जा सकते हैं. All right, let's take a look at the next thing that we have here. Now this is something we have. 0 हमारा सेंटर है, और राइट साइड पे जो हमारे नंबर्स हैं वो नंबर लाइन हमारी goes to infinity in both directions. This is what Lovepreet I mentioned कि हम लेफ्ट राइट की तरफ जितना मर्जी आगे जा सकते हैं. और लेफ्ट साइड पे इफ यू जस्ट ऑब्जर्व तो वहां पे नेगेटिव नंबर शो किए हुए हैं, एंड दे आर क्वाइट स्कैरी. सो यू कैन सी द ऑपोजिट्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स. हम नेगेटिव नंबर्स को और क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स. एंड दिस इज व्हाट कंपैरिजन लुक्स लाइक. Now there are two numbers that are just talking to each other. One is -14 and the other one is 5. And the -14 number says that my number has more digits. That means I am bigger. But the other one says, no, my number is to the right of yours, so my value is bigger. So this is what I said. अगर हम number line पे इनको show करेंगे तो 5 right side पे होगा, -14 left पे होगा. Although -14 अगर हम सिर्फ 14 को देख के compare करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. You have to keep this in mind. जब भी आपने comparison करना है, think of the number line. Number line पे ये दो कहाँ कहाँ पे होंगे? 5 होगा आपके राइट साइड पे, -14 होगा आपके लेफ्ट साइड पे, and that's why 5 will be bigger and -14 will be smaller. And after this we have the operation. हमने addition and subtraction करनी है integers की. Simply stating, आपने क्या करना है? आपने integers का साइन देखना है.
You will be looking at the sign of the integers and then you will decide what to do with them. So I have written two signs here. पहला इंटीजर भी पॉजिटिव है, सेकेंड इंटीजर भी पॉजिटिव है. So just watch here. यहाँ पे 2 है, 2 के आगे कोई साइन नहीं है, that means it's plus. फिर दूसरा इंटीजर है 5, उसके आगे प्लस लगा हुआ है. This is also positive. फर्स्ट इंटीजर सेकेंड इंटीजर दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैंने क्या करना है, इनको ऐड करना है. तो मैंने 5 और 2 को ऐड करके क्या मिल गया मुझे, 7 मिल गया. और 7 के साथ मेरा क्या साइन लगेगा, प्लस साइन. तो आप अगर चाहो तो लिख सकते हो इस तरह से, या फिर आप ऐसे प्लस लिख के साथ में 7 लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होंगे. एंड देन वी हैव, जब हमारे दोनों इंटीजर्स के आगे माइनस लगा हुआ है, अगर मेरे दोनों इंटीजर्स के आगे माइनस लगा हो, फॉर एग्जाम्पल हियर पहला इंटीजर है 2, इसके साथ भी माइनस है, फिर है 5, इसके साथ भी माइनस है, तब भी मैंने क्या करना है, इवन देन आई विल हैव टू ऐड. और इस केस में जब मैंने 2 को और 5 को ऐड किया, मुझे 7 मिला, और मैंने अपने आंसर के साथ क्या अटैच करना है, माइनस साइन. आंसर साइन शुड बी माइनस साइन. एंड वेयर एज अगर मेरे इंटीजर्स हैं ऑपोजिट्स, अगर मेरे इंटीजर्स के साइन ऑपोजिट हैं, ये जो लास्ट 2 केसेस हैं, अगर मेरा पहला इंटीजर प्लस वाला है, दूसरा माइनस वाला है, या फिर पहला माइनस वाला है, दूसरा प्लस वाला है, इन दोनों केसेस में मैंने क्या करना है, सबट्रैक्शन करनी है. इसमें ऑपोजिट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस में क्या करनी है, सबट्रैक्शन, और सेम साइन में क्या करनी है, एडिशन. और जब हम सबट्रैक्शन करेंगे तब जो साइन यूज होगा वो लार्जर इंटीजर का नहीं यूज होगा, नंबर का यूज होगा. सो इग्नोरिंग द साइंस, यहाँ पे 2 और 5 है, इनको सबट्रैक्ट किया तो 3 मिला. दोनों में से बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा है. एंड 5 कौन सी टीम का मेंबर है, नेगेटिव टीम का मेंबर है, तो आंसर के साथ भी क्या लग गया, माइनस लग गया. एंड यू कैन कंपेयर इट विद द लास्ट एग्जांपल है. इन्होंने 2 को अब माइनस वाली टीम का बना दिया, पहले वो प्लस टीम का था, और 5 को उन्होंने अब प्लस टीम का बना दिया. क्योंकि ये ऑपोजिट टीम के हैं, आप नंबर्स को सबट्रैक्ट करोगे, तो 5 और 2 को सबट्रैक्ट करके आपको मिल जाएगा 3. वो आंसर यहाँ पे आ गया. और इसके साथ जो साइन होगा वो किसका आएगा, 5 का, बिकॉज 5 इज बिगर. यस लवप्रीत. मैम ये हमने सेकंड वन में, मैम यहाँ पर सेकंड वन में हमें ऐसे लिखा है -2 -5. मैम पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर ये ऐड होकर मैम फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें आंसर माइनस में आएगा ना फिर ये. हाँ जी, देखो यहाँ पे -7 लिखा हुआ है बेटा. The answer is -7. आपने जो सॉल्विंग करनी है ना, सॉल्विंग हमेशा आपने वर्किंग कॉलम में करनी है, यहाँ पे नहीं करनी जैसे मैंने साइड पे किया है सॉल्व. अगर यहाँ पे भी मैंने एडिशन करनी होती तो 2 और 5 मैं वर्किंग कॉलम में ऐड करती. फिर यहाँ लिखना है, सीधा आंसर लिखना है आपने साइन के साथ. Okay. Then after this there is something else that we want to discuss here. That's new for you. Okay, this is a comparison. ये भी हमने किया हुआ है. Sorry, combination of, just a minute. This is what I told them not to join the class. Okay, so let's just discuss this. अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, ये जो ब्लैंक है ना, मैं यहाँ पे नंबर फिल कर रही हूँ. So I'm just writing 5 here. ठीक है. अब आपने करना क्या है, जो आपका 5 है उसके पहले अगर आप चेक करते हो तो आपको 2 साइंस नजर आ रहे हैं. इंटीजर हैज 2 साइंस अपीयरिंग बिफोर इट. एक इंटीजर के आगे 2 साइंस नजर आ रहे हैं. तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस. तो हम यहाँ पे साइंस को कंबाइन करेंगे और कॉम्बिनेशन से सिंगल साइन बन जाएगा. सो 2 साइंस कंबाइन टू फॉर्म 1 साइन. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, द साइन ऑफ प्लस एंड प्लस, ये जो प्लस प्लस का साइन था इससे कंबाइन होके क्या बन गया, प्लस साइन बन गया. और माइनस माइनस जब इकट्ठे आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, प्लस. और अगर ऑपोजिट होंगे तो वो क्या कंबाइन होके बनेंगे, माइनस. अब आपने एक बात क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैं कॉम्बिनेशन बोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट. कॉम्बिनेशन का मतलब है आप कोई सम कर रहे थे,
इस तरह से लिखा हुआ था, जस्ट लेट मी जस्ट शो यू। आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 7, फिर आ गया प्लस, फिर एक ब्रैकेट आ गई, उसके बाद आ गया माइनस, फिर आ गया 9। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, यू विल ओपन दी ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे। नाउ यू हैव दीज टू साइंस अपीयरिंग टुगेदर, तो प्लस और माइनस कंबाइन होंगे। कंबाइन करना है इनको, कंबाइन करके क्या बन जाएगा? माइनस। माइनस। कंबाइन करने के बाद आपके पास ये बन गया माइनस, एंड देन यू कैन नाउ सॉल्व। अब चेक करो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपका जो 7 है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। मैम -2। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन डू इन वर्किंग कॉलम, तो आपको 2 मिल गया। तो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया 2, और साइन किसका आएगा? 9 का, बिकॉज 9 इज बिगर। मैम यस अच्युत। मैम हमें करवाया था मैम, आप पता नहीं प्लस माइनस इकट्ठे करो या माइनस प्लस इकट्ठे करो, दोनों में से एक का प्लस बनता है कंबाइन करके। बेटा इफ यू डोंट रिमेम्बर द रूल्स फ्रॉम लास्ट टाइम, प्लीज लर्न नाउ। अब लर्न कर लो, इनको लर्न करना है आपको। अगर आप भूल चुके हो, ये रूल्स हैं। अगर आपके दो साइन इकट्ठे आ रहे हैं, वो कंबाइन होके सिंगल साइन बनाएंगे। इस चीज का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव देखकर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, इसका और कॉम्बिनेशन का कोई कंसर्न नहीं है। डोंट मिक्स देम अप। Combination of signs is different thing, and deciding whether to add or subtract and what sign will be there with the answer, वो different चीज है। Okay, so I'm just going to stop here, and I'll be sharing with you now the PDF. इसके बाद बेटा एक और पेज है, वो मैं कल डिस्कस करूंगी आपके साथ। All right? Just a minute. Attendance. Attendance, because students have already sent to me. Give me a minute, because what happens is usually you people leave